So today being Mother's Day, I have a special message for you. आज मातृ दिवस है, इसी कारण से आज मेरे पास आपके लिए एक विशेष So संदेश have है। your Bible ready and your notebooks ready to write down what God is speaking to you through this message today. इसलिए अपनी बाइबलों को तैयार कर लें, अपनी किताबों को तैयार कर लें और लिख लें वो बातों को जो परमेश्वर के पास है आपसे बोलने के I लिए। believe God will speak to you not only to the mothers here but to everybody in this room. मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज सिर्फ माँओं से बात नहीं करेगा, लेकिन हर एक जन से बात करेगा जो यहाँ उपस्थित How है। many of you know that God can speak to us through the life of a woman? आप में से कितने लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक स्त्री के जीवन से भी हमसे बात कर सकता है? Amen. God can use men and women to speak to us. परमेश्वर एक पुरुष को और एक स्त्री को इस्तेमाल कर सकता है हमसे बात करने And के the लिए। whole Bible is stories of God's dealings with his men and his women. और पूरा वचन ये बताता है कि परमेश्वर कैसे एक पुरुष और स्त्री से बातचीत So करता है। today we're going to talk about an unusual mother in the Bible. और आज हम एक ऐसी माँ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो असामान्य माँ है। This mother is a very unique mother compared to any other woman in the Bible. ये सारी माँओं से हटकर ये अलग सी एक विशेष माँ है। And we're going to turn to the book of Judges, और इस- chapters 4 and 5 today. इसलिए हम न्यायों की पुस्तक की ओर अपनी बाइबलों को पलट लें। न्यायों 4 और 5। Judges chapter 4 and chapter 5. न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय और 5 अध्याय। And we're going to look at the life of Deborah. और हम डेबोरा के जीवन से दबोरा के जीवन से बात करने जा रहे Of हैं। all the women in the Bible, this woman attracts me more than anybody else. सारी बाइबल में सारी स्त्रियों से बढ़कर ये स्त्री मुझे बहुत आकर्षित करती है। All of them are very powerful women, but this woman had something unusual. सारी स्त्रियां ही बहुत सामर्थ्य रही, लेकिन इसके अंदर कुछ असामान्य सी बात। But as we celebrate Mother's Day, आज हम जैसे मातृ दिवस बनाते हैं, it is important to observe, how this whole Mother's Day celebration came about. और ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे ये पूरी रीति से मातृ दिवस हम बनाते हैं। In fact, it was an event or a special day that was launched in the church, inside the church, in the year 1907 as a Mother's Day. ये कलीसिया के अंदर इस दिन का निर्माण हुआ जो 1907 में हुआ था। A lady decided to honor women in the church, and they decided in the year 1907 that on a particular Sunday we honor mothers. एक स्त्री ने ये निर्णय लिया कि हम एक नियुक्त रविवार के दिन में एक माँ को जो है आदर और सम्मान देंगे, और वो 1907 में था। So ever since that launch of Mother's Day throughout the world, this particular month, either in the month of May or June, one Sunday is set apart for celebrating mothers. 1907 से लेकर लगातार ये दिन जो है मातृ दिवस के रूप में हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। Regardless of what your experiences are in relation to a mother, whether your mother is alive or maybe your mother has gone to be with the Lord. चाहे कैसे भी आपका संबंध अपनी माँ के साथ हो, चाहे वो जिंदा है या परमेश्वर के पास चली गई है, Or maybe you have had, as a mother, some bad experiences in your life where maybe you could not conceive a baby. और माँ होकर शायद अगर आपके कोई बुरे अनुभव रहे जब आप एक माँ नहीं बन पाए, Or maybe you had experiences where you were pregnant but your child got aborted, or the child died prematurely in the womb or after being born. या ऐसा हो गया आपके साथ, एक ऐसे दुख की समय हो गया कि जब आप गर्भवती थी तो उस टाइम पे या तो आपका गर्भपात हो गया या बच्चा होने के बाद आपने बच्चा खो। We see in the Bible stories that life is full of heartbreaks, pain and joy at the same time. हम बाइबल में देखते हैं बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जहाँ आनंद था, दुख था, हृदय का टूटना भी था। Regardless of our joy or our pain, we need to make note of the fact that mothers are worth celebrating and worth acknowledging. चाहे कैसा भी समय रहा हो, चाहे दुख का रहा हो, अच्छा रहा हो, लेकिन ये बहुत एक मानने की बात है कि एक माँ को आदर देने योग्य है वो। How many of you feel that they need to be acknowledged and celebrated? आपको कितने लोगों को लगता है कि हम उनको पहचानना चाहिए, उनका हमें आनंद उठाना चाहिए? For all the sacrifices, the pain, the labor that they go through in raising up a family. एक बलिदान जो
जो वो करती हैं, त्याग करती हैं एक परिवार को बढ़ाने के लिए। They are naturally, from a natural perspective, they are worth celebrating. प्राकृतिक रूप से भी अगर आप देखें तो उनके जीवन वो योग्य हैं कि हम उनको जीवन को मनाएं। But Bible also commands us to respect and honor our parents. लेकिन बाइबल भी हमें ये सिखाती है कि हमको अपने माता और पिता का आदर करना है, वो हमको कमांड देती It है। is one of God's top 10 commandments given to us to honor your father and your mother. परमेश्वर के उच्च 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि हमको अपने माता पिता का आदर करना है। Even Paul the apostle acknowledged the role of mothers that have played in raising up men and women of God. इसलिए पौलुस भी ये हमको आज्ञा देता है, वो जो माएँ हैं, जो स्त्री, जो पुरुष है, जो परमेश्वर के भय में बढ़ते हैं, उनका कैसे आदर करना है। In fact, if all of us, every single one of us, have depended fully 100% upon our mother's mercy at one time in our lives. हम में से सब लोग, प्रत्येक जन अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार अपनी माँ के ऊपर पूर्ण रीति से निर्भर हुए हैं। And so we cannot ignore or close our eyes to the reality of motherhood and mothers. इसलिए हम माँ का जो एक जीवन है उसको नकार नहीं सकते हैं अपने जीवन And में। so it is worth today to talk about a woman who have had such an impact not only to her own community but to a whole nation called Israel. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस दिन को जाने और मनाएं, ये जानते हुए कि इज़राइल ऐसे राष्ट्र के रूप में इस दिन को बनाता है। We're going to look at 5 qualities that made Deborah an unusual mother. हम दबोरा के जीवन से 5 ऐसे गुणों को देखेंगे जिसने उसको एक असामान्य स्त्री बनाया, मदर बनाया। Interestingly, this amazing story of this amazing woman is recorded in a book called Judges. हम देखते हैं कि रुचिकर रीति से अगर हम देखें तो इस स्त्री का जीवन जो है न्यायों की पुस्तक में लिखा गया है। You know, the book of Judges is a time when God, after raising up kings, he raised up judges to bring the people of Israel back to God. हम जानते हैं वचन में राजाओं को खड़ा करने के बाद परमेश्वर ने न्यायियों को खड़ा किया कि वो खड़े होकर भविष्यद्वक्ता लोग, ताकि वो परमेश्वर की बातों को बोलें। God raised up kings, he raised up judges, he raised up prophets to call people back to himself. परमेश्वर ने राजाओं को खड़ा करा, न्यायियों को खड़ा किया और साथ ही साथ भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया कि लोगों को परमेश्वर के पास वापस लेकर आ So सके। if you study the book of Judges privately, अगर आप व्यक्तिगत रूप में बैठकर न्यायियों की पुस्तक को you will पढ़ें see that it is one of the saddest book in the Bible. तो आप ये पाएंगे कि पूरी बाइबल में ये सबसे दुखद एक किताब है। Why is the book of Judges sad? क्यों न्यायों की पुस्तक को हम दुखद पुस्तक कहते हैं? Because it is a sad story of God's people turning away from God repeatedly and walking away from God's presence. क्योंकि हम इस पुस्तक में ये पाते हैं कि परमेश्वर के लोग कैसे परमेश्वर से बार-बार दूर जाते थे। When I think about the book of Judges, I think about Indian driving or Indian traffic. जब मैं इस किताब के बारे में, लोगों के बारे में सोचता हूँ इस किताब में, तो मैं जो हमारे भारत में लोग गाड़ी चलाते हैं उनके बारे में सोचता In हूँ। the book of Judges, there is a verse that says everybody did what is right in their own eyes. यहाँ पे न्यायों की पुस्तक को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मतलब यह है कि सबने वो किया अच्छा जो उनकी आंखों में उनको अच्छा लगा। So when I explain to my friends around the world about what is Indian driving like, I tell them the Bible verse from Judges. इसलिए जब भी कोई मेरे मित्र लोग विदेश में कहीं भी मुझसे पूछते हैं कि भारत की ड्राइविंग के बारे में क्या है, कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो मैं हमेशा ये पद जो है न्यायों की पुस्तक से कोट करता हूँ। Everybody did what was right in their own eyes. सबने वही किया जो उनकी आंखों में अच्छा था। So the people of Israel was doing things in their own eyes what they felt was right. इसलिए इजरायलियों ने, परमेश्वर के लोगों ने वही कार्य किया जो उनकी आंखों में सही था। So amidst the sad and gloom, hope arises when we see God raising up a heroine by the name Deborah. और हम देख रहे हैं इस दुखद परिस्थिति में एक आशा जग रही है जब परमेश्वर एक स्त्री जिसका नाम दबोरा है उसको खड़ा कर रहा है। How many of you believe that in the midst of some tragic moments, God raises up our mothers to stand firm to declare the victory of God over our circumstances? आप में से कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि कठिन संकट के समयों में परमेश्वर कभी-कभी एक माँ को खड़ा
करता है कि वो उस परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाए। I have seen more often, even in families, God raising up mothers as a channel of hope, a channel of blessing in the midst of crisis and painful seasons. मैंने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर ने कैसे एक माओ को खड़ा किया है उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। And so it is with Deborah. और वही चीज यहाँ दबोरा के साथ भी है। We're going to look at the first thing that made this woman an unusual mother. सबसे पहली चीज देखेंगे जिसने इस स्त्री को असामान्य स्त्री बनाया। First of all, she was a prophetess. सबसे पहली बात वो एक भविष्यद्वक्तिनी थी। If you look at Judges chapter 4 verse 1 to 4, अगर हम न्यायों की पुस्तक उसके चौथे अध्याय के पहले 4 पदों को देखेंगे, you will find Deborah was the only woman in the scripture who was a national leader in Israel. हम ये देखेंगे कि हम ये पाते हैं कि दबोरा ही वो एक ऐसी स्त्री थी जो पूरी रीति से राष्ट्र एक अगुवे के रूप में जानी गई। Deborah have risen to the highest position in the nation of Israel. दबोरा पूरे इज़राइल में सबसे उच्च पदवी पर खड़ी हुई। And the only woman to have risen to that level of influence. अब बस वही एक ऐसी स्त्री थी जो इतनी ऊंची उठी प्रभाव डालने के लिए इज़राइल में। After the time of Deborah, दबोरा के बाद में Israel had one more modern day woman prime minister. इज़राइल के पास एक और स्त्री प्रधानमंत्री हुई। Can you name what is her name? आप बता सकते हैं कि वो कौन सी स्त्री हुई? No. There was a woman prime minister, a modern day woman prime minister in Israel. Her name was Golda Meir in 1967. गोल्डा मायर करके ये स्त्री थी जो दबोरा के बाद दोबारा से एक बार एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई इस्राएल में। When you look at history, जब आप इतिहास देखते हैं, Golda Meir was the third world's only female prime minister. गोल्डा मेयर जो थी वो पहली ही तीसरी प्रधानमंत्री थी स्त्रियों में। And the only female prime minister for the modern Israel. और जो आधुनिक इज़राइल है उसकी सबसे पहली वो प्रधानमंत्री बनी। She was a Russian woman. वो एक रशिया की रहने वाली स्त्री थी। And she was raised in America. और वो अमेरिका में पली बड़ी। She immigrated back to Israel. वो वापस इज़राइल चली गई। And you find this woman becoming a powerful leader in the nation of Israel. और हम ये पाते हैं कि इज़राइल में बड़ी प्रभावशाली एक स्त्री अगुवा बनी है। She was also a mother. वो एक माँ भी थी। She was a wife. एक पत्नी भी थी। But became a very strong leader until the year 1974. लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत एक स्त्री बन गई 1974 तक। So when you look at the history of Israel, जब आप इतिहास देखते हैं इज़राइल का, you can see how unique and important this woman Deborah was. आप ये पाएंगे कि दबोरा कितनी ज़्यादा एक प्रभावशाली स्त्री थी। And we know down through the history of our nations, God has raised up mighty women prime ministers and leaders. और आप जानते हैं इतिहास गवाह है इस चीज़ का, इन सालों में परमेश्वर ने कितने अगुवों को उठाया है। Can you name some powerful women leaders of modern political history? इस आधुनिक इतिहास में क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी स्त्री जो अगुवे के Who रूप में? comes to your mind? Indira Gandhi, of course, we cannot forget the powerful, dynamic woman that Indira Gandhi was. हम इंदिरा गांधी के बारे में नहीं भूल सकते हैं कि कैसी वो एक प्रभावशाली स्त्री थी। Okay, who else? Who else comes to your mind? और कौन आता है आपके दिमाग में? But Banerjee Bhutto from Pakistan, right? बनर्जी भुट्टो पाकिस्तान Yeah, she was a very dynamic leader. वो भी बहुत ही एक Who प्रभावशाली else? स्त्री Who थी। else? Mother Teresa was not a political leader. She was a social leader and a religious leader. Yeah. Margaret Thatcher. How about Margaret Thatcher? She actually revolutionized the politics. उन्होंने कैसे जो है एक परिवर्तन लेकर आई वो When you look at Deborah, she stands nowhere near any of this women that we have just named. इसलिए ये सारी स्त्रियों के बारे में जिनके बारे में हमने बात करी, दबोरा का किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। Deborah was such a woman of influence at the highest level of her day. दबोरा बहुत ही ज्यादा एक प्रभावशाली स्त्री थी उस उच्च स्तर पे जिस पे वो थी। She is among the distinguished and limited number of prophetess recorded in the Bible. वो बहुत ही प्रसिद्ध स्त्री थी और बाइबल में और सारी स्त्रियों से ज्यादा उनके बारे में बताया गया। Only handful of women prophetess names are mentioned in the Bible. सिर्फ बाइबल में बहुत ही कम ऐसी भविष्यद्वक्तिनियों के बारे में बताया गया जैसे We have दबोरा की। Miriam, Moses' sister, in Exodus chapter 16. मूसा के बहन के बारे में हम पढ़ते हैं
एक्सोडस निर्गमन के 16वें अध्याय में। Then we have another woman prophetess in 2 Kings chapter 22 by the name Huldah. फिर दूसरे राजा के 22वें अध्याय में हम हुल्दा के बारे में पढ़ते हैं। Isaiah chapter 8, Isaiah's wife, her name is not mentioned, यशाया 8 में हम पाते हैं यशाया की पत्नी के बारे में, was a prophetess. वो भी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। In Luke chapter 2, Anna was a prophetess. हम अन्ना के बारे में पढ़ते हैं लूका 2 में। Acts chapter 21, we read about Philip's 4 daughters who were prophetess. हम प्रेरितों के काम के 21वें अध्याय में पढ़ते हैं फिलिमोन की बेटियों के बारे में जो 4 बेटी थी। So when you compare modern day women leaders and spiritual leaders, and you compare historic women leaders in the Bible, Deborah stands tall in history. जब आप आत्मिक अगुवों के बारे में बात करते हैं, जब आप राजनीतिक अगुवों के बारे, हम ये पाते हैं कि ऐतिहासिक जो अगुवे रहे उनमें दबोरा का अलग से एक नाम था। There are 2 important roles in the Old Testament that God considered as very important. 2 ऐसे वो गुण हैं या जो कार्य हैं जो परमेश्वर बाइबल में जो है बहुत विशेष मानता था। Number 1 is the role of priest. सबसे पहले जो एक याजक का कार्य होता था। As I mentioned before, God has these 2 offices in the Old Testament, very unique offices. पुराने नियम में बहुत ही विशेष ये 2 ऐसी पदवियां थी जो परमेश्वर ने लोगों को दी थी। First of all, priest. सबसे पहला याजक, पुरोहित। Priests were the only people who were allowed to enter into the Holy of Holies, and their job was to represent people before God. और ये याजक लोग वो होते थे जो जिन्हीं को बस ये अधिकार था कि वो पवित्र महापवित्र स्थान में जाए जहां से वो लोगों को परमेश्वर तक पहुंचा सके। In the Old Testament, people were not allowed into the very presence of God. पुराने नियम में लोगों को अनुमति नहीं थी कि वो परमेश्वर की महत्वपूर्ण उपस्थिति में जा सके। Only the priests were allowed to go and enter into the sanctum sanctora, the Holy of Holies, to intercede on behalf of the people. सिर्फ एक याजक को, एक पुरोहित को अनुमति थी कि वो महापवित्र स्थान में जाए लोगों की जगह में। In the New Testament, we have the great high priest, greater than the priesthood of Melchizedek, and that is Jesus Christ. और नए नियम में हम पाते हैं महायाजक के बारे में, मलकीसदेक का नाम हम सुनते हैं जो उससे बढ़कर था, यीशु मसीह. He is our high priest. यीशु हमारा महायाजक है। Right? And what does Jesus do? Even now, right now, what does Jesus do? और यीशु क्या करता है हमारे लिए, अभी भी क्या करता है? What is the role of Jesus now in the heavenly throne room of God? यीशु का क्या कार्य है इस समय परमेश्वर के सिंहासन पे? As a priest, he is interceding for you and me right before the Father God. याजक बन के वो आपके लिए, हमारे लिए अपने पिता के सामने मध्यस्थता कर रहा है And हमारे that's लिए। why we don't pray to anybody else, but we pray in the name of Jesus. इसलिए हम किसी और के नाम से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Mary is not at the right hand of the Father to pray to the Father, मरियम नहीं है पिता के दाहिनी ओर बैठकर जो प्रार्थना कर रही है, but Jesus is. लेकिन यीशु है। And so we pray to Jesus in his name. इसलिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से। So in the Bible, priests had a significant role. इसलिए बाइबल में याजकों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य And था। then you have prophetess or prophets. और फिर हम पाते हैं जो भविष्यद्वक्ता लोग थे, उनका एक विशेष कार्य था। What was the role of the prophets? उनका कार्य क्या था? They were to hear the voice of God, उनको परमेश्वर की आवाज सुननी थी and they were to be the mouthpiece of God to the people. और उनको परमेश्वर का मुंह बनकर लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना In था। other words, दूसरे शब्दों में prophets represented God before the people. ये ऐसी था कि परमेश्वर का प्रगटीकरण थे वो लोगों के सामने। Who do you want to be? You want to be a priest or do you want to be a prophet? आप क्या बनना चाहते हैं? आप एक याजक बनना चाहते हैं या आप एक भविष्यद्वक्ता बनना चाहते Which हैं? is a better position? आपके लिए कौन से एक अच्छा सिद्ध एक पदवी है? Think about that. सोचिए इसके बारे में। I would rather be a prophet मैं शायद चाहूंगा कि मैं एक भविष्यद्वक्ता to होता, represent God to people. कि मैं परमेश्वर को प्रस्तुत करूं लोगों के Because सामने, everybody who tried to represent people before God have had a lot of struggles. क्योंकि जो लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करने की कोशिश करी उनको ज्यादा संघर्ष हुआ। But both roles are very important. लेकिन दोनों जो कार्य हैं, ये पदवियां हैं, वो जरूरी हैं। But think about this. लेकिन सोचिए इसके बारे में। Deborah was a woman who represented God to the people. दबोरा वो स्त्री थी जो परमेश्वर को उपस्थित करती थी लोगों के सामने। And
what was the prophet supposed to do? और भविष्यद्वक्ता लोगों का कार्य क्या था? They speak about the future things that God wants to reveal to his people. वो भविष्य की बातों को जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता था वो लोगों तक पहुंचाते थे। In other words, they were foretelling the future. और वो भविष्य को बताने वाले लोग होते थे। They were भविष्यद्वक्ता। also declarative. वो घोषणा करने वाले भी लोग होते थे। In other words, they declare what God is telling to the people right now. जो लोग परमेश्वर लोगों के लिए अभी कह रहा है वो उसको उसकी घोषणा करते थे। So Deborah, as a woman, to be acknowledged as a prophetess, इसलिए दबोरा को ये जानने के लिए कि वो एक भविष्यद्वक्तिनी है, what kind of spirituality she had? कैसी प्रकार की आत्मिकता वो रखती थी। I believe she had an intimate relationship with God. मैं ये विश्वास करता हूँ उसका एक बहुत ही अपना और गहरा संबंध परमेश्वर के साथ था। God only shared his secret things to those who have an intimate relationship with him. परमेश्वर अपनी गुप्त और छुपी हुई बातों को उन्हीं से प्रकट करता है जो उसके साथ एक अच्छा एक घनिष्ठ संबंध रखते So हैं। for you to be a prophet, इसलिए आपको एक भविष्यद्वक्ता बनने के लिए your spiritual eyes needs to be opened, your spiritual ears need to be opened to know and to hear what God is speaking. इसलिए आपकी आत्मिक आंखों को आपके आत्मिक कानों को खुलना जरूरी है ताकि आप देख सके परमेश्वर के कार्यों को, सुन सके So परमेश्वर के कार्यों। Deborah, as a prophetess, had a spiritual influence over the nation of Israel. इसलिए दबोरा के जीवन के द्वारा एक आत्मिक प्रभाव इजराइल पूरे इजराइल में था। She heard from वो God परमेश्वर से सुनती थी and she spoke for God. और वो परमेश्वर के लिए बोलती थी। Woman of God, एक परमेश्वर की स्त्री थी। in this generation, इस पीढ़ी में God is raising you up as the prophetess यीशु आपको परमेश्वर खड़ा कर रहा है एक भविष्यद्वक्तिनी to बनने hear के the लिए। voice of God क्या परमेश्वर की आवाज को सुने and to speak for God to the people. और आप परमेश्वर के लिए बोले लोगों को। Many times when we look at the Bible, कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते or we हैं hear preachers talk about the faith of the fathers, या हम प्रचारकों को सुनते हैं हमारे पिताओं के विश्वास के बारे में, we think, well, what about the faith of the mothers? हम सोचते हैं तो फिर माओं के विश्वास के बारे में क्या? Why don't we talk about the faith of the mothers? हम क्यों एक माँ के विश्वास के बारे में बात नहीं We करते only हैं? talk about the faith of the fathers. हम सिर्फ एक पिता के विश्वास के बारे में बात करते But हैं। when you look at the woman like Deborah, लेकिन जब आप एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जैसे दबोरा थी, you can see that you can actually have the faith of your mother. आप देख सकते हैं कि आपके अंदर भी एक माँ का जो विश्वास है वो आपके अंदर भी हो सकता And so है। I want to challenge you today. इसलिए आपको मैं आज चुनौती देना चाहता May हूँ you be a woman of such faith that your children will say, I have the faith of my mother. कि आपके अंदर एक ऐसा विश्वास हो कि जब आपके बच्चे आपको देखें कहने पाए मेरे अंदर वही विश्वास है जो मेरी एक माँ के अंदर है। Deborah is a challenge to remember the faith of our mothers. दबोरा एक चुनौती के रूप में हमारे लिए है कि हम एक माँ के समान जो विश्वास एक माँ रखती है। Here is a woman that is worth following. ये एक ऐसी स्त्री है जिसके जो योग्य है जिसके पीछे चल सकते And so हैं। today, इसलिए आज if you have a mother who is a woman of God, आपके पास एक माँ है जो एक परमेश्वर से प्रेम करने वाली माँ if you है, have a mother who believes in Jesus, जो एक ऐसी माँ है जो यीशु पे विश्वास करती है, if you have a mother who prays, एक ऐसी माँ है जो प्रार्थना करती if you है, have a mother who hears the voice of God, आपके पास एक ऐसी माँ है जो परमेश्वर की वाणी सुनती है, if you have a mother who is able to speak the oracles of God to your household, अगर एक ऐसी माँ आपके पास है जो परमेश्वर की वाणी को सुन के आपको बताती है घर would में, you say thank you, Jesus? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? Thank you, Lord, for those mothers. धन्यवाद परमेश्वर ऐसी माँओं के लिए। Thank God for those mothers who have such spiritual legacy. धन्यवाद दें ऐसी माँओं के लिए जिनके पास एक ऐसी आत्मिक एक इतिहास है। One of the classic sayings of APJ Abdul Kalam, late honorable President of India. आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया ये कथन है जो लिखा है He ऐसा। says, the only day in your life, ये सिर्फ वही दिन है आपके जीवन the में, only day in your life, सिर्फ वो दिन आपके जीवन में your mother smiled when you cried. जब आपकी माँ मुस्कुराई जब आप रोए थे। Your mother cried when the only day in your life when your mother smiled when you cried.
सिर्फ एक ही दिन था वो आपके जीवन में जब आपकी माँ मुस्कुराई और जब आप रो रहे थे. So women have such an ability to influence because they have this ability to delight in their children. इसलिए एक माँ के अंदर एक ऐसी क्षमता है कि वो प्रभाव डाल सकती है क्योंकि वो अपने बच्चों में आनंद लेती है. Even in pain, a mother can rejoice and be happy for their generations. दर्द की अवस्था में भी एक माँ ऐसी चीज होती है जो आनंद कर सकती है. So I want to encourage you mothers इसलिए आप सब माओं को मैं उत्साहित करना to चाहता हूँ become a woman of God who is able to hear the voice of God कि आप एक परमेश्वर की वो माँ एक ऐसी स्त्री बन जाए कि आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकें and become a prophetess for this generation. ताकि आप इस पीढ़ी के लिए वो भविष्यद्वक्तनी बन जाएं. Amen. Speak the oracles of God to your generation. परमेश्वर के लिए उन शब्दों को बोले जो इस पीढ़ी में आपको बोलना है. And not only that, सिर्फ यही नहीं, for all of us to thank God for the faith of our mothers. हम सबों को हमारी माओं के विश्वास के लिए धन्यवाद देना The है. second thing that I see in Deborah दूसरी चीज जो मैं दबोरा के जीवन में देखता हूँ is that she was a wife. वो एक पत्नी भी थी. In Judges chapter 4, verse 4, न्यायों की पुस्तक उसके चौथे अध्याय का चौथा पद. it says Deborah was the wife of Lapidoth. यहाँ पे लिखा है वो लपीदो की स्त्री थी दबोरा. Before she became the leader of Israel, she was already married. वो इससे पहले कि वो नबी न्याय एक नबिया बनती वो पहले से ही शादीशुदा Now, थी. if you look at the Bible verse, अगर हम बाइबल के पद को देखें, the Bible never says that Lapidoth was the husband of Deborah. हाँ यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लपीदोत जो था वो दबोरा का पति था. But it says यहाँ ऐसा लिखा है, Deborah was the wife of Lapidoth. यहाँ लिखा है दबोरा जो थी वो लपीदो की पत्नी थी. So if somebody meet Usha अगर कोई उषा से मिले, सिस्टर उषा से, and say here is the wife of Pastor James, Usha James, और यहाँ पर पास्टर जेम्स की पत्नी है उषा जेम्स, or you can say it that Usha is the wife, James Chaco is the husband of Usha James. और पास्टर जेम्स चाको जो है वो मिसेस उषा जेम्स के पति हैं. Who do you want to give the prominence to? किसको आप ज्यादा उत्साहित मतलब महत्वपूर्णता देना चाहते हैं? For example, if your older brother or younger brother is so famous, अगर आपका बड़ा भाई और छोटा भाई बहुत मशहूर है, you will be known by your brother आप अपने भाई के द्वारा जाने जाएंगे who is so famous. जो ज्यादा मशहूर होगा. He is the brother of so and so, ये उसका भाई है and your name will become insignificant. और आपका नाम जो है वो थोड़ा निम्न हो जाएगा. Even here in the Bible, यहाँ बाइबल में भी God acknowledges Deborah over her husband. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर दबोरा को उसके पति के ऊपर यहाँ सम्मान दे रहा है. But that did not get to Deborah's head. लेकिन ये चीज ने दबोरा के सिर पे नहीं घुसी. Even though she was a hero, जबकि वो एक नायिका थी, even though her name eclipsed above her husband's name, और जबकि उसका नाम जो है उसके पति से ज्यादा अधिक महत्वपूर्णता पाया, Deborah always honored God by honoring the covenant she made with Lapidoth. लेकिन दबोरा ने हमेशा जो एक वाचा अपने पति के साथ बांधी थी लपीदोत के साथ, उसके साथ बना के रखी. In modern day history, I think of people like Sister Joyce Meyer, who is an amazing woman of अगर God. हम आधुनिक समय में देखें तो हम जानते हैं प्रभु की दासी जो है जॉयस मेयर. How many of you know that she is married? आपको पता है कि वो शादीशुदा हैं. आप But how many of you know her husband's name? लेकिन आप में से कितने लोग को उनके पति का नाम पता I है? don't think many of you know her husband's name. शायद हम में से कईयों को उनके पति का नाम Maybe नहीं you पता. have never met him. शायद आप कभी उनसे मिले ही नहीं But हैं. when you look at Joyce Meyer's life, लेकिन जब आप बहन जॉयस मेयर के जीवन को she देखते हैं, always honors her husband. वो हमेशा अपने पति को सम्मान देती हैं. And she lives in submission to her husband. वो अपने पति के अधीनता में जीवन बिताती हैं. And so the lesson that we can learn from Deborah इसलिए हम दबोरा के जीवन से एक पाठ क्या पढ़ सकते is that हैं? regardless of who you become as a woman, चाहे आप कुछ भी बन जाए एक स्त्री होकर, you will always be submissive to your husband. आप हमेशा अपने पति के अधीन रहेंगे. You will always be that wife to your husband. आप वही पत्नी बन के रहेंगे जैसे आपको एक पति के अधीन रहना है. What you model to your children in your marriage will remain in the life of your children. आप अपने शादीशुदा जीवन में जैसा एक नमूना अपने बच्चे के लिए बनते हैं
वो उन बच्चों के साथ जीवन भर रहेगा। In today's society, इसलिए आज के समाज में I find many women who pursue careers and become very famous in their careers. मैं देखता हूँ कि ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो व्यापार करती हैं और बहुत ही ज्यादा अपने उस कार्य में बहुत आगे बढ़ जाती हैं, And they become greater salary makers or income makers than their husbands. और वो बहुत ज्यादा धन कमाने लगती हैं, उतना ज्यादा कि वो अपने पति से भी ज्यादा कमाती हैं। And suddenly everything, the dynamics in the family changes. और एकदम से परिवार का जो चलना होता है वो पूरा बदल जाता है। Suddenly the husband is the taxi driver in the house. अब एकदम से जो है वो एक टैक्सी का ड्राइवर बन गया है पति And का, suddenly the husband becomes the babysitter in the house. और घर में एकदम से जो है पति जो है बच्चे की देखभाल करने वाला बन गया And है, the wife is ordering the husband around to do this, do that. और पत्नी जो है एकदम से आज्ञा देने वाली बन जाती है अपने पति को कि ये करो वो करो। And that is not a biblical pattern of how a wife and husband is supposed to live. ये बाइबिल हमको ऐसा नहीं सिखाती है, ऐसा एक पति और पत्नी को नहीं रहना है। Like Deborah, जैसे दबोरा थी, even in your highest position, अपनी उच्च पदवी में भी honor your husband. अपने पति का आदर करें, And how you speak to your husband, और आप कैसे अपने पति से बात करते your हैं, attitude to your husband, आपका स्वभाव अपने पति के प्रति कैसा your है, commitment to your husband. आपका समर्पण उनके प्रति कैसा है। And this is going to be observed by people around you, but more so your children. ये सब चीजें लोगों के द्वारा देखी जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके बच्चों के Let द्वारा। me tell you two greatest gifts a woman can give to their kids. मैं बताना चाहता हूँ दो ऐसे सबसे मुख्य एक उपहार जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। Write this down. लिख लीजिए इस चीज Two को। greatest gift a woman can give to your kids. सबसे एक उच्च दो वो दान जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। Number one, सबसे पहला to love God. परमेश्वर से प्रेम करना। Love God. परमेश्वर से प्रेम If you करना। are a woman who loves God, अगर आप वो स्त्री हैं जो परमेश्वर से प्रेम करती that is हैं, the greatest gift you can give to your ये children. सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। Number two, दूसरी बात, दूसरी बात, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Love your spouse. अपने पति या पत्नी से प्रेम करना। Love your spouse. अपने पति या पत्नी से प्रेम करना। Hallelujah. That is the Hallelujah. greatest gift you can give to your ये children. सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने बच्चों को दे सकती The हैं। Bible says wives are to honor their husbands. बाइबिल कहती है पत्नियों को पति का आदर करना है। In the book of Ephesians chapter 5 verse 33, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 33वें पद में there हम is a पढ़ते हैं, counsel by Apostle Paul both to the husband and to the wife. यहाँ पर पति पत्नी दोनों को पौलुस एक सलाह दे रहा है। Paul says to the husband, पौलुस कहता है पति को he is to love his own wife as he loves himself. उसको अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करना है जैसे वो अपने से प्रेम करता But है। the second part of that verse, लेकिन दूसरा हिस्सा इस पद का, let the wife see that she respects her husband and honors her husband. लेकिन ये पत्नी को देखना जरूरी है कि वो अपने पति का आदर करे और उसका भय माने। And Paul goes on to say, और पौलुस फिर कहता है as the church submits to Christ, जैसे कलीसिया परमेश्वर के अधीन होती so है, wives must submit to their husbands in everything. इसी वैसी ही पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहे हर चीजों में। As your husband love you as he loves himself. वैसे ही पति लोगों को पतियों से वैसी प्रेम करें जैसे पति अपने आप से स्वयं प्रेम करते हैं। What is your responsibility? आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? Your responsibility is to submit to your husband in everything. आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपने आप को हर चीज में अपने पति के अधीन हो जाएं। Now, maybe as husbands, we need to maybe make some changes in the way we love our wife. शायद पति होकर हम में से शायद पतियों को जरूरी है कि अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आएं। Do we truly love our wives as Christ loves the church? क्या हम अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया? Many times as men, we demand our wives to submit to us. कई बार पति होकर हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे अधीन हो जाएं, But लेकिन we don't do our responsibility हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं करते of loving our wife as Christ loves the church. कि हम अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम रखें जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। And so as your husband love you as Christ loves the church, इसलिए जैसे आपका पति आपसे प्रेम रखता है जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम रखा, what do you have to do? आपको क्या करना है? Submit to your husband in everything. अपने पतियों के अधीन हो जाएं हर चीजों में। Everything. Everybody say everything. हर चीजों में। Amen? If you're a husband here, turn to your wife and say everything. अगर आपके पति साइड में बैठे उनको बोलिए हर चीजों में, Not in some areas. सिर्फ किन्हीं किन्हीं चीजों में नहीं, Not in some areas.
किन्हीं किन्हीं चीजों You में know, नहीं। sometimes we tell, leave this area to me. I will take care of this. हम बोलते हैं कुछ कुछ चीजों को आप छोड़ दो, ये सब चीजें तो मैं देख But the लूंगा। Bible is very clear. लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है In Proverbs नीति वचन में chapter 31, 31 अध्याय में verses 10 onwards, 10वें पद से आगे it talks about a virtuous, godly woman. यहाँ बताते हैं कि कैसी एक अच्छी स्त्री होती है। I know that our life women have gone through a series of Proverbs 31. मैं जानता हूँ कि हमारी जो लाइव वीमेन की जो आराधना होती है उसमें बहनें लोग पूरे इस अध्याय से होकर गुजरी हैं And have learned about what does it mean to be a virtuous woman. और वो ये सब जानती हैं कि एक अच्छी एक स्त्री होना क्या होता है। I read somewhere these 10 virtues of a virtuous woman. मैंने कहीं पे 10 चीजों के बारे में पढ़ा है जो एक स्त्री के अंदर गुण होने Are चाहिए। you ready? क्या आप तैयार हैं? These are 10 virtues that I thought I saw as important. ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक स्त्री के अंदर होने चाहिए। Number 1 सबसे पहला is faith. विश्वास, Number 2, दूसरा marriage. शादी, Number 3, तीसरा mothering. माता का जीवन, Or number 4 is health. चौथी चीज है सेहत, Number 5 is service. पांचवी चीज है सेवा करना, Number 6 is finances. छठी चीज है किसी तरह से उनको पैसे के द्वारा सहायता करना, Number 7 is industrious. व्यापार करना, Number 8 is homemaking. घर चलाना, Number 9 is beauty. सुंदरता, Number 10 is time management. Time. 10वीं बात यह है कि अपने समय को कैसे हम Now, चलाते हैं। how many of you agree with these 10 as the virtuous qualities of a woman? आप में से कितने लोग हमारे साथ सहमत होंगे ये बोलने के लिए कि ये 10 गुण एक स्त्री के अंदर होने How चाहिए। many of you will delete something out of this list? आप में से इस पूरी 10 की लिस्ट में से किस चीज को आप हटाना चाहते हैं Or what would you like to add to this list? या आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? I always respect women who have professional and skilled career outside of their home. मुझे वो सारी स्त्रियों के प्रति बहुत आदर है जो बहुत अनुभवी अपने पदवी में अपने कार्य में होती हैं। In fact, I have only one daughter and I have raised her to be one. और मैं ये जानता हूँ कि मैंने मेरे पास एक बेटी है और अपने बेटी को उस तरह से खड़ा किया है। I would always respect and encourage you to pursue a respectable career. मैं आपको हमेशा उत्साहित करना चाहूंगा ये बोलकर कि एक आदरणीय एक पदवी की ओर अपने आप को उठाएं। Become a lawyer, become a doctor, become an engineer. Nothing stops you. एक न्यायी बन जाएं, एक डॉक्टर बन जाएं, एक इंजीनियर बन जाएं, But कोई in आपको that रोकता नहीं। position, serve Jesus Christ. लेकिन उस पदवी में पहुंचकर परमेश्वर की सेवकाई करें। But in the midst of your career making, अपने कार्य, अपने जीवन के अपने भविष्य को बनाने के इस you दौर में cannot sacrifice your responsibilities in your home. आप अपने घर की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। Do not prioritize your career over your family. अपने परिवार से ऊपर अपने कार्य को महत्वपूर्णता या प्राथमिकता ना दें। As a woman, your family and your husband and your children is your number one priority. परिवार में होकर आपके जीवन के लिए एक स्त्री होकर आपका पति और आपके बच्चे, आपके परिवार पहला होना चाहिए। Your husband is supposed to be the breadwinner in your home. आपका परिवार में आपका पति होना चाहिए जो रोटी कमाए। And if you are making some extra money, great, wonderful. You can buy a better house, a better car. अगर आप भी पैसा कमाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छा घर खरीद सकते हैं। But your house, your home should not be dependent on the bread that you earn as a woman to manage your house. लेकिन आप जो कमाते हैं वो आपके घर चलाने के लिए वो रोटी नहीं बननी चाहिए है। As men, we need to own up to the responsibility of being provider to our family. एक आदमी होकर, एक पुरुष होकर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को चलाएं। And so the most godly woman that we see in Deborah, इसलिए हम बहुत ही ज्यादा एक आत्मिक या एक प्रभु में होकर एक स्त्री को हम देबोरा में देखते that हैं she was a godly wife. कि वो एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। And she maintained the covenant relationship with her husband. वो एक ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति के साथ एक वाचा को निभाया। And that brings me to the third point, वो मुझको तीसरे बिंदु की ओर लेकर चलता है। is that she was a leader. वो एक अगुवा थी। She was a leader for the nation of Israel. वो पूरे इजराइल राष्ट्र के लिए एक अगुवा थी। It says in Judges chapter 4 verse 4 to 5, हम पाते हैं न्यायों की पुस्तक उसके चौथे अध्याय का चौथा और पांचवा she पद। would sit under the palm tree which is named after her own name. वो जो है
उस पेड़ के नीचे बैठती थी जो जिसका नाम उसके नाम से रखा गया। Isn't it interesting that she sat under this tree long enough that the whole people recognized this tree by her name? ये जो पेड़ का नाम था दबोरा के नाम से रखा गया। ये कितना रुचिकर है कि वो ऐसा पेड़ था। And what was the people doing? और लोग क्या करते थे? People would come to Deborah for judgment, for wisdom. और लोग दबोरा के पास आते थे न्याय लेने के लिए, बुद्धि लेने के लिए। So as a leader, Deborah was a judge to the people. इसलिए एक स्त्री होकर दबोरा जो थी लोगों के लिए एक न्याय देने वाली स्त्री थी। So whatever Deborah was giving counsel to the people, that became the norm for the decisions in their families. इसलिए जो भी दबोरा जो भी बातें सलाह के रूप में लोगों को देती थी वो लोगों के परिवार के लिए एक उनका एक निर्णय लेने का एक कारण बन जाता था। When you see the book of Judges, जब आप न्यायों की पुस्तक को देखते हैं, God raised up judges to cause people to return from rebellion परमेश्वर ने न्याय लोगों को खड़ा किया and to bring them to repentance कि लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाए और पश्चातापी हृदय दे, and restore the people back to God. ताकि लोगों को वापस परमेश्वर के पास पुनः एक संबंध में So जोड़ दे। Deborah, as a woman of God, इसलिए दबोरा परमेश्वर की स्त्री होकर would speak the wisdom of God to the people and pronounce judgment to the people वो परमेश्वर की बुद्धि को लोगों से बोलती थी और न्याय देती थी and cause people to repent of their sin. लोगों को ये इस निर्णय तक ले आती थी कि वो लोगों को पश्चाताप करवाए And cause people to turn back to God. और वो लोगों को बोलती थी कि परमेश्वर के पास वापस मुड़ जाओ। You must look at this life of this woman. आपको इस स्त्री का जीवन देखना है। She was a very powerful woman, वे बहुत ही एक सामर्थ्य शक्तिशाली very स्त्री थी, influential woman, बहुत ही प्रभावशाली स्त्री थी। but she made herself available to the people to serve. लेकिन फिर भी वो अपने आप को लोगों के सामने उपस्थित करती थी। She took time to go and sit under the tree called Deborah. वो समय लेती थी कि उस पेड़ के नीचे जिसका नाम दबोरा था वहां जाकर लोगों के पास And बैठे। she had an arm-atmi relationship. She had a relationship with ordinary people. और वो सामान्य लोगों से, साधारण लोगों के साथ अपना संबंध रखती थी। In the book of Proverbs, chapter 16, verse 3, हम नीति वचन उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। we see about the virtuous leader that is a servant. हम पाते हैं कि यहाँ पर कैसे एक गुणी स्त्री जो एक सेविका होती है वो है। And I was attracted to this quote by John Stott. और मुझको ये जॉन स्टॉट के द्वारा इस कथन के द्वारा बड़ा प्रभाव मुझे। This says the authority by which the Christian leader leads is not power but love. मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक मसीही जो अगुवा है उसका प्रभाव या अधिकार उसकी शक्ति में नहीं लेकिन उसके प्रेम में होता है। Not force but example. वो एक दबाव नहीं होता है लेकिन एक उदाहरण होता है। Not coercion but reasoned persuasion. वो एक किसी जबरदस्ती से नहीं होता लेकिन उसका एक कारण, एक अच्छा कारण होता है। Leaders have power. अगुवों के पास शक्ति होती है, but power is safe only in the hands of those who humble themselves to serve. लेकिन शक्ति तभी सुरक्षित होती है जब हम किसी के हाथ में नहीं लेकिन अपने आप को अधीन कर देते हैं दूसरों की सेवकाई के लिए। We see that humility in Deborah. हम पाते हैं दबोरा के जीवन के अंदर वो नम्रता थी। She was a leader who was willing to give counsel to the people and serve the people. वो ऐसी अगुवा थी कि वो लोगों को सलाह देती थी और लोगों के साथ रहती थी। How many of you want to be a leader, woman of God, sitting here in this room? हम में से कितने लोग जो परमेश्वर की स्त्रियां हैं वो ऐसा अगुवा बनना चाहती हैं? Amen. God has raised you up to be a leader in this generation. परमेश्वर ने आपको इस पीढ़ी में खड़ा किया है कि आप एक अगुवा बन सके। That people can come to you for counsel, wisdom and direction. ताकि लोग आपके पास आ सके सलाह लेने के लिए, निर्देश लेने के लिए। Don't settle yourself to be confined to the four walls of the kitchen. अपने आप को एक चार दीवारों में किचन की ना संभालें बस। At the end of your life journey, you will be sitting down and counting how many onions you peeled. अपने जीवन के अंत में आप बस बैठकर यही देखेंगे कि आपने कितनी प्याजें छील ली, or how many chapatis you made. या आपने कितनी रोटियां बना ली। That's not the legacy you want to live for the kingdom of God. ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपने परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ सकते हैं। I'm not saying cutting onion or making chapatis are not important. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटी बनाना या प्याज छीलना जरूरी नहीं है। But there is something more that God wants to do through you. लेकिन आपके जीवन से परमेश्वर और भी कुछ ज्यादा है जो करना चाहता He है। wants to make you a woman of wisdom. वो परमेश्वर आपको एक बुद्धि की स्त्री He बनाना wants to make चाहता you है। a woman of influence. परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली स्त्री बनाना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God wants to release you. परमेश्वर आपको
आगे बढ़ने के लिए बोल रहा If है। only the church preached this message 20 years ago, अगर ये संदेश 20 साल पहले आपको सुनाया the जाता, whole woman liberation movement would have never been happening. ये जो स्त्रियों का जो एक छुड़ौती का जो एक कार्य था वो नहीं शुरू होता। Women's liberation came into existence because the church suppressed the woman to be only in the kitchen. क्योंकि हम ये पाते हैं कि ये जो लिबरेशन मूवमेंट है, ये जो ऐसा कार्य शुरू हुआ छुड़ौती का स्त्रियों का, ये नहीं होता अगर How many of you agree? Yeah? कलीसिया में जो स्त्रियां हैं वो एक किचन में ही रहती, रसोई में। And so the time has come for God's people, women of God, to rise above the pardas that has been created by people to become leaders for God. इसलिए समय आ गया है स्त्रियों के लिए अपने पर्दों से बाहर निकलकर वो परमेश्वर के लिए वो कार्य करें जिनके लिए उनको बुलाया गया है। Majority of our churches have 70% of women in our church. ज्यादातर कलीसियाओं में जनसंख्या अगर देखी जाए तो स्त्रियां पाई जाती हैं। Thank God that is not the case in our church. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया में ऐसा चीज नहीं है। We have more men in our church than women. हमारे पास ज्यादा स्त्रियां हैं कलीसिया में, इसके बजाय स्त्रियां। That is very unusual for a church in India. हमारे ये बहुत ही असामान्य है कलीसियाओं में भारत And so में। when we have a church that is made up of 70% of women, why are we not allowing the women to come out and be in the service of God? इसलिए जब कलीसियाओं में 70% स्त्रियां ही पाई जाती हैं तो उनको क्यों अनुमति नहीं दी जाती कि वो परमेश्वर की सेवकाई करें? It is the 20% or 30% of the men that are telling the women what to do. इसलिए 20% और 30% वो पुरुष लोग हैं जो स्त्री को बोलते हैं तुमको ये क्या करना है। Amen? So God is calling you, some of you. इसलिए परमेश्वर आप में से किसी को बुला रहा है। You know, I see God raising up authors, writers who will write books. मैं जानता हूँ यहाँ से आप से कितने लोगों को किसी को परमेश्वर किताब लिखने के लिए एक लेखक के रूप में बुला रहा है। Amen. I see Valentina writing books. मैं देखता हूँ वैलेंटीना को, वो किताब लिखती है। I see Sucheta writing songs. मैं देखता हूँ सुचेता जो है वो गाने लिखती हैं। Amen. Amen. I see God raising up women of power and influence. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर स्त्रियों को एक प्रभाव डालने के लिए और सामर्थ्य स्त्रियां बना रहा है। Women rise up. स्त्रियां खड़े हो जाएं। The time has come. समय आ चुका है। Hallelujah. हालेलुया। We see Deborah, हम दबोरा को देखते the हैं। fourth unusual characteristics of this woman. चौथा एक असामान्य गुण इस स्त्री के Now अंदर। you might say, how come she is a mother? आप सोचते होंगे कैसे एक ये माँ है। The Bible never say that she had children. बाइबल नहीं बताती है कि उसके पास बच्चे थे। Well, you don't need to have physical children to be a mother. कई बार आप लोगों के पास शारीरिक बच्चे होने की जरूरत नहीं है एक माँ बनने के लिए। Having physical children does not make you a mother. आपके पास शारीरिक बच्चे आपके खुद के हैं, आपको एक माँ नहीं बनाते हैं। I know mothers who have birthed children and have thrown their kids into the trash bin. मैंने ऐसी माँओं को भी देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया और बाद में कूड़े में फेंक दिया। I know mothers who have killed their babies in their wombs. मैंने ऐसी भी माँओं को देखा है, जाना है, जिन्होंने अपने गर्भ में ही बच्चे को मार डाला। Does that make that person a mother? क्या वो उस स्त्री को वो एक माँ कहलाई जा सकती है? What makes you a mother is a person who come alongside people who birth babies for the kingdom of God. माँ वो होती है जो अपने अंदर ऐसे बच्चों को पैदा करे जो परमेश्वर के लिए खड़े हों। So scholars are not sure whether Deborah had physical babies or not. इसलिए हम पाते हैं कि हमें नहीं पता कि विद्वान लोग बताते हैं कि हमें नहीं पता है कि उसके पास बच्चे थे कि नहीं थे शारीरिक रूप से। Her husband is mentioned in the scripture, उसके पति के बारे में हम पाते हैं अध्याय में बताया गया है, but children are not mentioned there. लेकिन बच्चों के बारे में नहीं बताया गया है। Either way, कैसे भी हो, a family and a nation need to experience love of God through a woman to know the love of God as the mother. एक परिवार को, एक राष्ट्र को एक माँ के प्रेम के द्वारा जानना जरूरी है। How many of you know that God has attributes of a mother? आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि परमेश्वर के अंदर एक माँ का गुण है? God comforts us as a mother comforts. That's the Bible says. बाइबल कहती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती है वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली And so दूंगा। God raised up Deborah to show love to the people of Israel. इसलिए परमेश्वर ने दबोरा को खड़ा किया कि वो इज़राइल के लोगों के लिए आशीष बन सके। I came across this quote, a Jewish proverb. एक कथन है जो यहूदी कथन है, It may not be theologically so correct, शायद धर्म वैज्ञानिक रूप से ये शायद ठीक ना हो, but it is worth noting. लेकिन इसको देखना सुनना जरूरी है। God could not be everywhere, and therefore He raised
mothers, or he made mothers. परमेश्वर सब जगह नहीं हो सकता था, इसलिए उसने माँओं को बनाया. It is true in some sense, किसी तरह से ये बात थोड़ी सच्ची है, but it is also not true because God is everywhere. लेकिन किसी तरह से ये बात ठीक भी नहीं है क्योंकि परमेश्वर सब जगह है. But when we see the love of God, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते and हैं we see the love of our mothers, और हम अपनी माँओं के प्रेम को देखते हैं, we see God's love. हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं. I was talking to a mother last week. पिछले हफ्ते मैं एक माँ से बात कर रहा था. She has only 2 boys. उनके पास 2 बेटे हैं. Both boys are in the jail दोनों बेटे जो हैं वो जेल खाने में हैं, because they both are drug addicts and they were robbing and stealing people's money. क्योंकि वो गलत आदतों में थे, वो दूसरों की चोरी करते थे, डकैती करते थे. But this mother, लेकिन ये माँ, she do not see their children as thieves and robbers. वो अपने बच्चे को एक ऐसे चोर के और डकैत के रूप में नहीं देखती The है. love that she had for her children, वो प्रेम जो एक माँ का वो अपने बच्चों के लिए रखती है, even though they are in jail, जबकि वो जेल खाने में है, fascinated me. मुझको बहुत आकर्षित किया. That is how God sees us. वैसे ही परमेश्वर भी हमको देखता है. God does not see us as sinners. परमेश्वर हमको पापी के रूप में नहीं देखता. God sees us as righteous people in Christ Jesus. परमेश्वर हमको अपने आप में धर्मी होकर देखता है. There is a British psychologist. एक ब्रिटिश एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं. He said like this: उन्होंने ऐसा कहा है, the first 5 years of a child's lives are the most crucial years बच्चों के जो शुरुआती 5 साल होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, because they are the most impressionable years of a child's life. क्योंकि वो एक बहुत प्रभाव डालने वाला समय होता है एक बच्चे के जीवन में. So Dr. Bowlby, this psychiatrist says, ये बॉल्बी जो है ये मनोचिकित्सक ऐसा कहते हैं, the young child's hunger for his mother's love एक छोटे बच्चे का जो एक भूख होती है माँ के प्रेम के लिए and the presence of the mother और माँ की उपस्थिति के लिए, is as great as his hunger for food itself. वो इतनी ज्यादा होती है कि खाने की भी भूख से ज्यादा. Her absence inevitably generates a powerful sense of loss and anger. और अगर माँ अनुपस्थित हो या ना हो तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोध और एक खोने को महसूस कराती है So बच्चे को. how important it is the role of a mother in our society. इसलिए कितना जरूरी और महत्वपूर्ण एक उनका कार्य है हमारे समाज में. Of course, our society is becoming a motherless and a fatherless society today. हमारा समाज आजकल एक पिता रहित और माँ रहित एक समाज बन रहा How many है. of you know that there is a whole generation that is now being born that do not know who their father is or who their mother is? आप में से कितने लोगों को पता है कि एक ऐसी पीढ़ी आ गई है जहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है. What is going to be the outcome of this generation? उसका परिणाम क्या होगा इस पीढ़ी का? A lost generation. एक खोई हुई पीढ़ी. Lost. खोई हुई. No wonder they are lost. ये बात कुछ शक की नहीं है कि वो खो चुके They हैं. are lost so much they don't even know if they are male or female. वो इतना ज्यादा खो चुके हैं कि उनको ये नहीं पता है कि वो पुरुष हैं कि वो स्त्री. Hello, are you hearing me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? They are so lost they do not even know their gender identity उनको अपना लिंग भी नहीं पता है, इतना ज्यादा वो इस संसार में खो चुके हैं. because they do not have a father, they do not have a mother. क्योंकि उनकी ना तो माँ है, उनका ना तो पिता है. And what is the next one? और उसका अगला क्या है? Anger. क्रोध. How many of you think that this coming generation is a generation full of anger and frustration? आप में से कितने लोग ये समझ सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है बहुत ज्यादा क्रोध में और बड़ी We चिड़चिड़ी already सी see रहती है. that around us. हम पहले अभी से देखते हैं अपने चारों For तरफ ऐसा. everything and anything they get angry. हर चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए वो क्रोधित हो You जाते tell हैं. them I love you, they will shout back at you with an anger face. अगर आप उनसे बोलें कि आप उनसे प्रेम करते हैं फिर भी वो आपकी तरफ गुस्से में बात Have you करेंगे. seen that kind of kids? आपने Yeah. देखा है ऐसे बच्चों को Angry. क्रोधित. The problem is a motherless, a fatherless generation. कारण यह है कि पिता रहित माता रहित समाज है. So mothers, इसलिए माओ step out into your position. अपने अपने कदमों को आगे बढ़ाएं. उस Not only पदवी to की ओर. your children, अपने बच्चों के लिए ही नहीं सिर्फ, but be a mother to the motherless. लेकिन जो माँ जिनकी माँ नहीं है उनके लिए भी माँ बन Be जाए. a mother to those people who are around you. उन लोगों के लिए एक माँ बन जाएं जो लोग आपके आस पास रहते हैं. Hallelujah. And finally, as I close, और आखिरी में जब मैं खत्म करता हूँ, we see about Deborah. हम दबोरा
के बारे में पाते हैं, She was a warrior. वो एक योद्धा थी, She was a warrior. वो एक योद्धा थी। Judges chapter 4 verse 6 to 10. यहाँ पे हम छठे पद से लेके 10वें पद तक उसके बारे में पाते Terror हैं। had reigned for 20 years in Israel. खतरे जो है बहुत ज्यादा 20 साल के लिए इजराइल में आ चुके The थे। Canaanites were attacking the people of Israel. कनानी लोग जो है इजराइलियों के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। Deborah told Barak, the captain of the army, to go and fight the battle. दबोरा ने कप्तान को बोला, उस पूरी लोगों के बाराक को बोला, Deborah told Barak to obey the voice of God and go and fight the battle. दबोरा ने बाराक को बोला कि परमेश्वर की वाणी सुनो और जाओ और इस युद्ध को लड़ो। And what did Barak say? बाराक ने क्या बोला? Barak said in verse 8. यहाँ पे हम पद 8 में पढ़ते हैं, Judges chapter 4 verse 8. न्यायों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय का 8वां पद। Here is a male captain of the army. यहाँ पे एक कप्तान है अपनी आर्मी का, पुरुष Mishewala. पुरुष। All right. He's telling to this woman, वो स्त्री से ऐसा कह रहा है, if you will go with me, अगर तू मेरे साथ जाएगी then I will go. तब मैं जाऊंगा। So even this man, the captain of the army, saw something in this woman. इस पुरुष ने भी, इस बाराक पुरुष ने भी स्त्री के अंदर कुछ अलग सा देखा, Something of fierce character and attribute that will win this battle, help them to win this battle. एक निडर, एक ऐसा स्वभाव जो इस युद्ध को जीतने के लिए मदद करेगा। And what did Deborah do? और दबोरा ने क्या किया? Did she say, no, you guys, you men go and fight, I will stay here? उसने ऐसा बोला क्या कि आप सारे पुरुष लोग जाओ और आप लड़ाई करो, जाओ, मैं घर में बैठकर आपके लिए रोटी बना के रखूंगा, जब तक आपका युद्ध खत्म हो जाएगा मैं इधर खाना तैयार करके रखूंगा, ऐसे बोला? हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, आप चर्च में जाओ, मैं घर में आपके लिए लंच करके वेट करूंगा, right? That's what we tell. But she said, no, I'm coming with you. लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा, उसने बोला मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। She did. उसने ऐसे ही She किया। went into the battle with this man. वो इस आदमी के साथ उस युद्ध में लड़ने के लिए गई, Because this brave woman was committed to God's glory. क्योंकि ये बहादुर स्त्री जो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित थी। Hallelujah. हालेलुया। Woman of God. परमेश्वर की स्त्री, You need to step out and choose your battle. आपको कदम उठाना है और अपने युद्धों को लड़ना है। Choose your battle. चुनाव कर लें अपने युद्धों का। Why? क्यों? Because God wants to glorify His name through you. क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की महिमा आपके द्वारा देना God चाहता wants है। to give you victories. परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। How many of you have fought battles in your आप में life? से कितने लोगों ने अपने जीवन में युद्ध लड़ा है? I can ask many women of God sitting in this room, मैं जानता हूँ आप में से कई प्रभु की स्त्रियों के बारे में मैं जानता हूँ, where you have battled things before the presence of जब God, आपने परमेश्वर की उपस्थिति के सामने युद्ध लड़ा है and you have seen the victory of और God. आपने परमेश्वर की विजय को देखा है। Will you raise your hand if you have experienced that in your life? क्या आप अपने हाथों को उठा सकते हैं अगर आपने ऐसा अनुभव किया? Hallelujah. हालेलुया। God wants you to fight the battle. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने युद्धों को लड़ें। God has not given us a spirit of fear, परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं but He दी has है, given us a sound mind. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक शांत He has हृदय given दिया us है। wisdom उसने हमें बुद्धि दी to है stand firm in our faith. कि हम अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े हो जाएं। Maybe you have a child that has gone away from the Lord. शायद आपके पास एक बच्चा है जो परमेश्वर से दूर जा चुका Woman है। of God, परमेश्वर की स्त्री stand firm in the presence of God. अपने परमेश्वर की उपस्थिति में निडरता से खड़े हो जाएं। Fight the battle to win your children back to God. अपना युद्ध लड़े परमेश्वर के सामने। Maybe you have a husband शायद आपका एक पति है, who is walking away from God. वो परमेश्वर से दूर जा रहा है। You can be that warrior आप वो योद्धा बन सकती who हैं will see the return of your husband back to God. जो अपने पति को वापस आते हुए देखेगी। Golda Meir, who is who is another woman of God, गोल्डा मायर जो एक दूसरी एक परमेश्वर की स्त्री है, said like this: उन्होंने ऐसा कहा है, no nation is greater than its mothers, कोई भी ऐसा राष्ट्र बड़ा नहीं है जिसकी माँ नहीं है, for they are the makers of men. क्योंकि वो पुरुषों का निर्माण करने वाली हैं। It is mothers who produce men of quality. वो माँ ही होती है जो एक पुरुष को उसके गुणों को उत्पन्न कराती So है। today God is calling you, woman, इसलिए स्त्रियों परमेश्वर आपको आज बुला रहा to है be that warrior in your home. ताकि आप वो अपने घर में वो योद्धा बन जाएं। Hallelujah. So we've Hallelujah. seen 5 things about Deborah. इसलिए हमने 5 बातें दबोरा के जीवन से देखी। Number 1, सबसे पहली, she was a prophetess, सबसे पहली वो एक भविष्यद्वक्ति able to थी। hear the voice of वो God परमेश्वर की वाणी सुनने के and योग्य थी speak to the voice of God. और लोगों
लोगों को यीशु की वाणी पहुंचाती थी। Today God is calling you to recognize your spiritual gifts. इसलिए परमेश्वर आज सुबह आपको बुला रहा है कि आप पहचान लें अपने आत्मिक उन फलों को। What is your spiritual gifts within the body of Christ? आपके आत्मिक वो दान क्या है कलीसिया के अंदर? I want you to fan into flame the gift of God within you, as Paul said to Timothy. मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो आत्मा के दान के वो आग धधकने लगे। Hallelujah. मैन। Number 2, दूसरी बात, God is calling you to be that wife. परमेश्वर आपको वो पत्नी बनने के लिए बुला A रहा है। wife who is in submission to her husband. ऐसी पत्नी जो अपने पति के अधीन है। A wife who honors your husband. एक ऐसी पत्नी जो अपने पति का आदर करती A है। wife that will bless your husband. एक ऐसी पत्नी जो अपने पति को आशीष देती And है। a wife that will be a role model to your children. और एक ऐसी पत्नी जो अपने बच्चों के लिए आदर्श बनती है। Thirdly, तीसरी बात, we see Deborah as a leader. हम दबोरा को देखते हैं कि वो अगुआ थी। She stepped into the leadership calling. वो उस बुलाहट के लिए जो अगुवे की बुलाहट थी उसमें उसने कदम रखा। As a judge, she was serving the people. न्यायी बनकर वो परमेश्वर की सेवा करती थी। She was available to meet and speak to the people. वो लोगों के सामने उपस्थित होती थी और लोगों से मिलती थी। How many of you are willing आप में से कितने लोग इस इच्छा to रखते go हैं out of your comfort zone? कि आप अपने आराम की उस जगह से बाहर निकल कर Go जाएं? to the highways and byways. इन राहों पर चल कर Go to जाएं, your community. अपने समाज में जाएं, Go to your friend circles. अपने मित्रों के बीच में In your जाएं, workplace. अपने कार्यों की In जगहों your में, university. अपनी यूनिवर्सिटी में, Wherever you are. जहां भी कहीं आप हैं, Be that person who will speak the wisdom of God to those around वो you. स्त्री बन जाएं जो परमेश्वर की बुद्धि को बोले अपने लोगों के पास जो आसपास हैं। Hallelujah. हालेलुया। And number 4, चौथी बात, be that mother. वो माँ बने, Become a great mother वो ऐसी महान एक माँ बने who will impart spirituality जो आत्मिकता दूसरों को पहुंचाए, and who will teach leadership lessons to your children. जो एक अगुवे के उन पाठों को अपने बच्चों को पढ़ाए। And finally, और आखिरी में she was a warrior. वो एक योद्धा थी। She never resigned to mediocrity. वो कभी भी उन चीजों के प्रति जो एक साधारण She चीजें never थी, chose to be in the comfort zone. वो कभी भी उन साधारण चीजों के लिए और आराम की जगह में नहीं रहना She was चाहती थी। willing to go out, वो बाहर निकलना चाहती थी। step into the battlefield वो कदम रखना चाहती थी उस युद्ध के उन जगहों as a में, brave and courageous woman एक निडर होकर और एक बहादुर स्त्री होकर, to win the battle for God's glory. ताकि वो युद्धों को जीत सके परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The book of Proverbs chapter 31. नीति वचन 31 It closes these verses about mothers. वो माँओं के बारे में इस पदों को बोलकर खत्म करता है। Talks about the virtuous woman. वो बताता है कि ऐसी गुणवती स्त्रियों के बारे में, Not told by her friends, but her husband is saying these qualities. ये कोई उसके दोस्तों के द्वारा नहीं लेकिन उसका पति उसके बारे में ऐसा एक बात बोलता But है। it closes off that chapter. लेकिन यहाँ पर ऐसे पद खत्म होता है And it says, और यहाँ पर ऐसे लिखा है, her children will rise up. उसके बच्चे खड़े होंगे, Her children will rise up. उसके बच्चे उठ खड़े Come होंगे, on, say it with me. Her children will rise up. उसके बच्चे उठ खड़े होंगे। Woman, your children will rise up. स्त्रियां आपके बच्चे उठ खड़े होंगे। And what will they call her? और वो आपको क्या कहेंगे? Blessed. धन्य। Your children will call you blessed. आपके बच्चे आपको धन्य कहेंगे। Your husband will call you a virtuous woman. आपके पति आपको एक गुणवान स्त्री कहेंगे। That's what God wants you to be. यही परमेश्वर चाहता है आपके A जीवन से। virtuous woman. एक गुणवती स्त्री, A blessed woman. एक धन्य स्त्री।